السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 51 اور میں آپ کا ہوسٹ فرانسس ولیم۔ آج ناظرین ہم ایک چرچ میں موجود ہیں جو کہ دنیا بھر میں ایسٹر کی عید منائی جا رہی ہے، اور ہمارے ساتھ ایک پاسٹر موجود ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس ایسٹر کے حوالے سے تو جی پاسٹر صاحب ہمیں بتائیے گا کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور ہمارے ناظرین کو بتائیے گا ذرا۔ خداوند یسوع مسیح کے جلالی پروفازل لافانی نام میں آپ سب ویورز کو، آپ سب بہنوں بھائیوں کو، اور دنیا بھر میں رہنے والے مسیحیوں کو، بلکہ اہل ایمان کو آج ایسٹر کی مبارکباد دینا چاہوں گا۔ یہ عید دنیا کی تاریخ میں منفرد نام رکھتی ہے۔ یہ عید یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی جان کو صلیب پر دے دیا، اور اس کے بعد جب یسوع کو قبر کے اندر اتارا گیا تو یسوع نے اپنی حیات طیبہ کے اندر جیتے یسوع المسیح نے یہ فرمایا تھا کہ میں تیسرے دن اپنے قول کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اور جب وہاں پر جا کے دیکھا گیا تو یسوع کی قبر خالی تھی، اور یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھ کے فتح یابی کا شادیانہ بجا دیا۔ اور میں ضرور چاہوں گا کہ ہم بائبل مقدس انجیل جلیل میں سے ایک حوالہ ضرور پڑھیں۔ تھسلونیکیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہے، اور اس کا 4 باب اور اس کی 13ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے، اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نا واقف رہو، اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اس کے ساتھ لے آئے گا۔ یہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید ہمارے لیے سیلیبریشن ہے، اور دنیا بھر میں اس عید کو بڑے زور کے ساتھ، بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ منایا جاتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح امن کا گہوارہ ہے، یسوع مسیح محبت کا پیغام ہے، یسوع مسیح راہ، حق اور زندگی ہے، یسوع مسیح الہی قدرت ہے، اور وہ عجیب مشیر خدائے قادر اور ابدیت کا باپ ہے، کیونکہ خدائے ثالوث نے یہ کہا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کو ایسٹر کے پرمسرت موقع پر آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے خوشخبری کا پیغام اور اعلان یہ ہے کہ یسوع کی قبر خالی ہے اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ اچھا، تو پاسٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ اس ملک پاکستان میں رہتے ہوئے اقلیت، کیا آپ منورٹیز آپ اپنے آپ کو سیف سمجھتے ہیں؟ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جس ملک میں رہو اس کے لیے سلامتی چاہو، اور ہم ہر عبادت میں، ہر دعا میں ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے سلامتی، برکت اور سرفرازی کی دعا کرتے ہیں، اور صرف پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کے حکمرانوں کے لیے، وزراء کے لیے، کیبنٹ کے لیے، پاک آرمی کے لیے، پاک افواج ایجنسیز کے لیے ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ یسوع کے خون بہانے سے جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام، آپ سب کی سلامتی ہو۔
दुनिया में जो मरा कब्र में गया, कब्र ने उसे बाहर आने नहीं दिया। एक ही शख्सियत है, एक ही नाम है जिसकी ईद मनाने के लिए हम बड़े बेताब होते हैं, हम बड़ी तैयारियां करते हैं, हम सज संवर के अच्छे अच्छे कपड़े पहन के हम इबादत करते हैं, हम गीत गाते हैं, हम अपने घरों में मेहमानों का और उनके खानों का एहतमाम करते हैं। ये उस ज़ाते अक़दस यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद है, जिसने मौत और कब्र पर फतह पाके मौत को हरा के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के फतह का ऐलान कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम दुनिया में बताते हैं कि यीशु मसीह की कब्र खाली है। जी, हमारे साथ सैमुअल भाई मौजूद हैं, उनसे आज पूछेंगे कि दुनिया भर में ईस्टर मनाया जा रहा है, तो आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? ये इनकी ज़ुबान। जी, सबसे पहले तो मैं ये दुआ करना चाहता हूँ कि आज जो हम ईस्टर मना रहे हैं ये दुनिया के लिए एक बड़ा पैगाम है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में एक बड़ा काम किया, एक अजीम कुर्बानी पेश की जो बनीनो इंसान के लिए कफ़ारे का काम किया, जिसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसने मौत और कब्र पर फतह पाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर तमाम बनीनो इंसान के लिए एक निजात का, मखलसी का ऐलान कर दिया, जिसके वसीला से आज हम ईस्टर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईस्टर पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है और ये बड़ा पैगाम है यीशु मसीह के लिए की तरफ से को जो दुनिया को दिया जाता है, और मसीहत इस पैगाम को फैला रही है कि यीशु मसीह अमन का गहवारा हैं, यीशु मसीह मोहब्बत का गहवारा हैं। यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर मोहब्बत को पेश किया और बनीनो इंसान के लिए यहाँ तक कि अपने आप को पेश कर दिया। तो मैं ये दुनिया को बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की कब्र खाली है और वो ज़िंदा हैं और वो मौजूद हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ बनीनो इंसान को कि यीशु मसीह नजात है, यीशु मसीह के बग़ैर नजात नहीं है। अगर हम आज ईस्टर को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये मसीहत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए नजात का ऐलान है, पूरी दुनिया के लिए ईस्टर है, क्योंकि ये सिर्फ़ मसीहों के लिए यीशु मसीह ने फ़िदिया या कफ़ारा नहीं दिया, बल्कि ये बनीनो इंसान के लिए यीशु मसीह ने कफ़ारा दिया, फ़िदिया दिया, और ये पूरी दुनिया के लिए ईद क़यामत अल मसीह है। यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के लिए अपने आप को पेश कर दिया। और हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए, सलामती के लिए दुआ करते हैं। मसीहत का पाकिस्तान में होना एक बड़ा एजाज़ है। यहाँ पर हम यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं और अपनी ईद को खुशियों के साथ सेलिब्रेट करते हैं और दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि मसीहत अमन है और अमन का गहवारा है, मोहब्बत है। और हमारे खुदावंद ने भी हमें ये बड़ा हुक्म दिया कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें। मेरी सुन ले दुआ, मुझे कर दे, तू है मेरा खुदा, तू है मुश्किल कुशा। मेरी सुन ले दुआ, मुझे कर दे, हाँ मुझे कर दे, मुझे कर दे। इंसान के लिए एक बड़ा काम किया जिससे हमने निजात को हासिल किया।
जो कोई यीशु मसीह के फिदिया पर, उसकी कुर्बानी पर ईमान लाता है, वो हमेशा की जिंदगी पाता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान दी, मेरे लिए और आपके लिए अपने खून को बहा दिया। उसने मेरी सलीब को उठाकर कोहे कलवरी पर अपने आप को बलिदान कर दिया। कि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो। जो क्या हुआ था, सुन नहीं रहे आप? जो मसलूब हुआ था, तुम उस यीशु को ढूंढती हो। वो यहां ओए थे नहीं। ओ माय गॉड, कौन ले गया हमारे यीशु को? हम तो यीशु के पास आई थी, हम पहले ईद में थी, अब ईद की हालत के बाद अब ये गई है कब्र पर कि यीशु को ये खुशबूदार चीजें मिले। लेकिन आगे माजरा कुछ और हो गया है। हुआ क्या है? लिखा है, फरिश्ता ने उनसे कहा, वो यहां नहीं है, वो यहां नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। वो अपने कौल, अपने कहे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। ये है ईदे क़यामतुल अलमसीह, ये है हैप्पी रेज़रेक्शन डे, ये है ईस्टर ईद का एहतवार। कई दफा हमें पता ही नहीं होता कि ये ईद है किस बड़ी कुदरत का बयान। ये उस कुदरत का बयान है जिसके लिए यूहन्ना बुक ऑफ जॉन उसके 3 बाब की 16वीं आयत में दर्ज है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। हालेलुया। अच्छा, एक और हमारे साथ बेटी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि वो आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देंगी और क्या कहना चाहेंगी। तमाम देखने वाले मसीही पाकिस्तानियों को सबों को मेरा सलाम। ईस्टर के हवाला से मैं ये बात करना चाहूँगी कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह जिन्होंने ख़ुद को कुर्बान कर दिया हमारी खातिर, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये ईद हम यीशु मसीह के जी उठने की खुशी में मनाते हैं, जिसमें बड़े पुरजोश तरीके से जो है हम इबादत करते हैं, खुशी करते हैं। और एक आयत आपके सामने पेश करना चाहूँगी। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के दरमियान तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के दरमियान खुदा की कुदरत है। और अच्छा, ये बताइएगा कि ईस्टर के दिनों में क्या आपकी एक्टिविटी होती है? सहेलियों के घर जाती हैं, फैमिलीज़ के साथ होती है, किस तरह टाइम स्पेंड करती है पूरे दिन को इबादत के बाद? इबादत के बाद घर में ही तकरीबन होते हैं। सभी गेस्ट जो हैं तकरीबन हमारे घर ही आते हैं, क्योंकि हम बड़े हैं, मैं और मेरे हस्बैंड बड़े हैं, तो सभी जो हैं हमारे घर आते हैं, खाना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद जो है फिर अपने वालिदैन के घर जाते हैं शाम को। अच्छा, उनको तंग नहीं करते? नहीं, तंग नहीं करते। नहीं कहते नहीं कि ईदी दे हमें? नहीं, ईदी नहीं कहती। अच्छा, खाने में क्या क्या बनाती हैं? ज़्यादा सब लाइक करते हैं बीफ कढ़ाई, बिरयानी और चाट वगैरह, इस तरह की चीज़ें। मॉर्निंग में सेवइयाँ, खीर वगैरह इस तरह की चीज़ें, और दोपहर के लंच में जो है बीफ कढ़ाई, बिरयानी वगैरह इस तरह की चीज़ें। जी
जी नाज़रीन, तो हमारे साथ और भी कुछ बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आज के दिन के हवाले से कि वो किस तरह सेलिब्रेट करते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है इनकी आज के दिन की। हम लोग क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम माहम। आपका नाम क्या है? मैरी। मैरी। आपका नाम क्या है? ताइश। ताइश। अच्छा बताइएगा कि आज ईस्टर का दिन है, क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारे नाजरीन सुनने वालों को, और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी, क्या करती हैं? हम लोग सबसे पहले तो सुबह उठते हैं, प्रे करते हैं, चर्च में आते हैं, इबादत करते हैं सबके साथ मिलकर, और खूब खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर से ये ईस्टर बख्शा। अच्छा आप बताइए आपकी क्या एक्टिविटी होती है? सुबह उठते हैं, चर्च आते हैं, खुदा का नाम लेते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, फिर घर आते हैं, यूँ ही गेस्ट वगैरह आ जाते हैं। अच्छा। तो खाना फिर ये नहीं कहती कि या अल्लाह आज गेस्ट ना आए घर पे? नहीं नहीं, वो खुशी का दिन होता है, खुशियाँ बांटनी अच्छा चाहिए। अच्छा, उनमें क्या क्या करती? कोशिश ये होती है कि गेट के पास खड़ी हो जाती होंगी कि आज गेस्ट आ रहे हैं, कोई ईदी शीदी का भी प्लान होगा, कोई दे के जाएगा ये तो फिर या फिर लेके या देंगे उनको? नहीं, ये तो फिर ज़रूरी है, ईदी तो ज़रूरी होती है। अच्छा कौन कौन देता है? कितनी हो जाती है ईदी आपकी? यही कुछ 5-6 हज़ार तक तो। 5-6 हज़ार। नाजरीन देख ले, 5-6 हज़ार तक ईदी ये ले लेती हैं, बड़ी बात है। हमें तो जब हम छोटे थे तो हमें तो ईदी समझ ले के 200 या 300 से ज़ायद हमारे पास ईदी नहीं होती, और जब ईदी होती थी तब सोए होते थे, वो भी हमारी जेब से कोई निकाल लेता था घर वाला, हमें बेवकूफ़ बना देते। तो आपके साथ कभी ऐसा होता है? नहीं नहीं, वो आपका दौर था इसलिए आपको कम मिलती थी, हमारा दौर है में ज़्यादा। नहीं, इस दौर में तो अमाउंट ज़्यादा है ना, 5-6 हज़ार। तो घर वाले कहते होंगे अच्छा कुड़ी सो गई है, या भाई या मामा या पापा वो कहते होंगे चल इंज करने हैं, कुड़ी का ना 5-6 हज़ार होया था, चल ईद भी है तो परसों फिर खर्चा कोई नहीं होना तो मुक जाना।